الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہم قرآن کی سورۃ فیل کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھ رہے تھے، تو اس میں سے دو آیتیں آپ نے پڑھ لی تھیں۔ پہلی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور دوسری الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں آپ کی ہو گئی تھیں، چلو اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں ہم نے تجوید ان کی سمجھتے ہوئے پڑھا تھا، سیکھا تھا اسے۔ اور آج کی آیت ہے ہماری وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کو ہمیں تجوید کے حساب سے کیسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے آج کی اس آیت کے اندر پہلا حرف ہے وہ واو ہے۔ کیا ہے؟ واو۔ تو واو کا پہلے تو کسی بھی حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس کا مخرج پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کہ وہ حرف جو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں اس کا مخرج کیا ہے، وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو آپ؟ تو جو سب سے پہلا آج ہمارا حرف ہے وہ واو ہے، تو واو کا مخرج کیا ہے یہ ہم بتائیں گے آپ کو، پھر آپ بتا سکتے ہیں اگر ہم سوال کریں گے تب۔ ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہے جو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے۔ کیسے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے۔ ٹھیک ہے، سن لیا آپ نے؟ یاد ہو گیا؟ چار حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ چار حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان 29 حروف جنہیں حروف مفردات آپ کو بتایا تھا کہ حروف مفردات 29 ہیں اور انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں، تو ان حروف میں سے 29 میں سے 4 حروف ایسے ہیں جس میں ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کائے کا استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں با، فا، میم، واو۔ کون سے؟ با، دھیرے دھیرے، با، فا، میم، واو۔ یہ آپ کو بتایا تھا۔ با جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کے ہم نے بتایا تھا دو حصے ہوتے ہیں، ایک اندرونی حصہ، ایک باہری حصہ۔ ایک اندرونی حصہ اور ایک باہری حصہ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اندرونی حصہ ہونٹوں کا جو ہے اس سے با ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ با، یعنی دونوں ہونٹوں کی تری سے با ادا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تر حصہ۔ اور باہری حصے کو کہتے ہیں خشک والا حصہ۔ تو دونوں ہونٹوں کے تر حصے یعنی اندرونی حصے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ با، اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے یعنی باہری حصے سے ادا ہوتی ہے میم۔ کیا ادا ہوتی ہے؟ میم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوال ہو سکتا ہے آپ سے۔ اور رہا فا، تو اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ ہاں، اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر کیا ادا ہوتا ہے بھائی؟ فا ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہ گیا چوتھا حروف۔ چار حروف میں سے چوتھا حرف رہ گیا۔ جو 4 حروف ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس میں سے چوتھا حرف جو ہے واو ہے۔ تو واو جو ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں۔ کیسے ادا کرتے ہیں؟ گول کر کے۔ تو یہ بھی جو واو لکھا ہے اسے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہوگا۔ کیسے ادا کرنا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے۔ اب اس پر حرکت جو لگی ہے زبر کی لگی ہوئی ہے۔ کون سی لگی ہے؟ زبر کی۔ حرکت کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ زبر، زیر، پیش، تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ تینوں کیا کہتے ہیں؟ تو حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے۔ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ہاں، جب ہم اس واو کو ادا کریں گے اس پر زبر ہے تو نہ واو کھینچے اور نہ واو پہ جھٹکا لگے، نہ واو کھینچے اور نہ واو پر۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَرْ، یہ نہیں وا ار، یہ غلط ہو گیا۔
वार, ये कैसा हो गया? वार, ये क्या हो गया? गलत हो गया। सही क्या है? वार। सही क्या है? वार। क्या? बार नहीं होनी चाहिए, बार ये तो बा हो जाएगा। दोनों होंठ गोल करके रखेंगे, होंठों के बीच में अंगूर के दाने के बराबर जो है बीच में खला रहना चाहिए। तो कैसे होगा? वाह। क्या? वाह। अब इसे जब अदायगी में लेंगे पूरे कलमे को, तो वाव खींचना नहीं है। क्या नहीं होना है? बात आपके समझ में आ रही है? हाँ, जो बच्चे हमारे तलबा या दरसगाह बैठे हैं वो भी गौर करें, और जो हमारे YouTube चैनल पर हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं वो भी गौर करें कि जब वाव को हम अदा करेंगे तो दोनों होठों को गोल भी रखना है, और वाव पर जबर होने की वजह से वाव को खींचने नहीं देना। वाव को क्या नहीं करने देना है? हाँ, फौरन पढ़ेंगे वारो। कैसे पढ़ेंगे? वारो। ठीक है। अब हमजा पर भी जबर है, हमजा पर भी क्या है? जबर है, तो हमजा को भी नहीं खींचना है, हमजा को भी नहीं खींचना है। आपने ऐसा कर दिया कि वाव को तो नहीं खींचा, हमजा को खींचे, तब भी गलत हो जाएगा। आपने कह दिया व आर साला, तब भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ना वाव खींचेगा ना हमजा खींचेगा, ना वाव खींचेगा और ना हमजा खींचेगा। ठीक है। अब हमजा के बाद आ रही है रॉ। हमजा के बाद क्या आ रही है? रॉ। तो रा के बारे में आपको बताया था कि रा पर जबर या पेश हो तब भी पुर पढ़ते हैं, और रा से पहले जबर पेश हो तब भी रा को क्या पढ़ते हैं? पुर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रा कैसी पढ़ी जाएगी? जोर से बोलो, क्या पढ़ी जाएगी? पुर पढ़ी जाएगी, यानी मोटी करके पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो रा पर तो साकिन है, मगर रा से पहले जबर है। रा से पहले क्या है? तो रा से पहले जबर हो या पेश हो तो रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं। और उसकी भी तरकीब आपको बता दी थी, जब रा को पुर करना हो तो रा का जबान का अगला हिस्सा का जबान का जो अगला हिस्सा है इसको ऊपर उठाते हैं। क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं। ठीक है। तो रॉ मोटी हो जाती है। रॉ कैसे हो जाती है? अब यहाँ तक आ गए हम वारो। कहाँ तक आ गए? वारो। अब उसके बाद सीन है, तो सीन पर भी जबर है। सीन पर भी क्या है? तो सीन को कैसे पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। ठीक है। हाँ, और लाम पर भी जबर है, तो लाम को कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, अब इसमें सीन में ये समझ लें कि सीन का मखरज भी आपको याद ही है कि नोक जबान ऊपर नीचे के दांतों में के अंदरूनी हिस्से से लगाकर जा, सीन और साददा होते हैं। ठीक है। जो आपकी जबान की नोक का बारीक हिस्सा जो है वो ऊपर नीचे के दांतों के बीच में रख के तब अदा होती है। क्या? सीन। क्या अदा होती है? सीन। बात समझ रहे हैं आप? तो सीन और साद का मखरज एक है। अच्छा, ये बात बता देते हैं, वो साद आज के सबक में तो नहीं है, फिर भी बता देते हैं। सीन और साद का मखरज एक ही है। सीन और साद का मखरज क्या है? एक ही है। और दूसरी जो सिफत है इसके अंदर, सिफत सफीर, वो भी दोनों में है। सिफत सफीर भी क्या है? दोनों में। यानी सीटी की आवाज साद में भी आनी है और सीटी की आवाज सीन में भी आनी है। दोनों का मखरज भी एक है और दोनों में एक सिफत भी मुश्तरक है। यानी एक सिफत सफीर में दोनों शरीक हैं। सिफत सफीर में दोनों शरीक है, दोनों में पाई जा रही है। तो जब मखरज भी एक है और सिफत सफीर भी दोनों में पाई जा रही है, तो अब इन दोनों हरूफ के अंदर इम्तियाज कैसे होगा? फर्क कैसे होगा? क्या समझ रहे हैं आप? इन दोनों हरूफ के अंदर फर्क कैसे होगा? सीन को और स्वाद के अंदर ऐसे कैसे महसूस होगा कि ये सीन है, ये स्वाद है? तो फरमाने इसमें ये सीन और स्वाद में फर्क करने के लिए इनकी जो सिफत इम्तियाज है वो है सिफत इस्तिला। किसमें? स्वाद में। स्वाद में कौन सी सिफत है? और सीन में है सिफत इस्तिफाल। सीन में क्या है? हाँ, इसके सीन के अंदर जो सिफत इम्तियाज है, सिफत मुमय्यज़ा कहेंगे, जो इस सीन को स्वाद से अलग कर देगी, क्योंकि इन दोनों का मखरज एक है और सिफत सफीर में भी दोनों शरीक हैं। अब इन्हें फर्क कैसे करें? तो सीन के अंदर सिफत इस्तिफाल है और साद के अंदर सिफत इस्तिला है। क्या है? सिफत इस्तिला। तो सिफत इस्तिफाल, इस्तिफाल का माना आता है निचाई चाहना। इस्तिफाल का माना क्या आता है? जब हम सीन को अदा करेंगे तो जबान की जड़ को उठाना नहीं है, और जब हम स्वाद को अदा करेंगे तो जबान की जड़ को उठाना है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लिख लेते हैं। जैसे सीन को ये हमने लिख रहे हैं सालिक। क्या लिखा हमने? सालिक। और ये हमने लिखा साबिर। क्या लिखा? साबिर। अब दोनों की आवाज एक जैसे आएगी ना, सा सा, दोनों की आवाज सा सा से आएगी। तो जब हम सीन को अदा करेंगे तो जबान को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जब सीन को अदा करेंगे जबान को ऐसा रखेंगे, सीधा बिल्कुल। देखें, गौर कीजिए मेरी आवाज पे। सालिक, सालिक। सीटी इसमें भी रहेगी,
सालिक, क्या अब सीटी इसमें भी आएगी मगर इसको पुर कर देंगे, साबिर, क्या जबान की जड़ को उठा रहे हैं, साबिर, दोनों सा की आवाज आ रही है मगर सीन बारीक रहेगी और साद मोटा रहेगा। जो लोग इस तरह से पढ़ देते हैं सौबिर सौबिर, तो ये गलत है। जो सौबिर पढ़ देते हैं वो तो यूं हो जाएगा, यानी स्वा पे सात पे पेश और वाव पे ज़बर, ये हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप, इस तरीके से हो जाएगा। तो स्वा पेश हो जाएगा, स्वा नहीं है बल्कि कह रहे हैं सा अलिफ के साथ सीधा सा, क्या बस साद को मोटा करना है, सा कहना है और सीन को कहेंगे सा, बिल्कुल बारीक तलवार की धार की तरह सा, और इसमें सा, ठीक है। स्वा नहीं कहना, क्या नहीं कहना है, ये गलत है, स्वा नहीं कहना है, ठीक है, स्वा नहीं कहना है। तो यहाँ पर सीन कैसे पढ़ी जाएगी, बारीक पढ़ी जाएगी। कैसे पढ़ी जाएगी, बारीक पढ़ी जाएगी, बारीक कैसे पढ़ी जाएगी, बारीक, समझ रहे हैं आप। तो सीन को भी नहीं खींचेंगे, लाम को भी नहीं खींचेंगे। पूरा आपने कलमा समझ लिया है, तो इसको यूं पढ़ेंगे, होठों गोल करके वादा होगा व औ सला, व औ सला, क्या हाँ आपको समझाने के लिए अलग अलग पढ़ रहा हूँ। व औ सला कैसे, हाँ व औ सला, व औ सला कैसे। कोई लफ्ज खींचने वाला है इसमें, क्यों नहीं खींचा है कोई लफ्ज, कोई लफ्ज खींचने वाला है नहीं, ना तो खड़ा ज़बर है, ना अलिफ वाव या है, ना खड़ा ज़ेर है, ना उल्टा पेश है, ठीक है। व अरसला, व अरसला। अब अलैहिम को देखते हैं, तो अलैहिम पर सबसे पहला लफ्ज है आइन, क्या है, सबसे पहला लफ्ज कौन सा है, आइन। इसका मखरज भी आपको याद है कि दरमियान हलक से अदा होता है। कहाँ से अदा होता है, दरमियान हलक। कहाँ से अदा होता है, हलक के आपको तीन हिस्से बताए थे, शुरू हलक, दरमियान हलक और आखिर हलक। तो जो दरमियान हलक से अदा होता है आइन, कहाँ से अदा होता है, दरमियान हलक से। तो आइन पर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। लाम पर भी ज़बर है, लाम के बाद या है, यानी ये या लीन है, तो या लीन भी नहीं खींचती है, या लीन भी ज़्यादा नहीं खींचते, ना खींचेंगे और ना झटका देंगे। हरूफ लीन को बगैर खींचे, बगैर झटके अदा किया जाता है। अब ये हा गया तो हा का मखरज शुरू हलक है, कहाँ है, शुरू हलक है। फिर मीम आ गया तो मीम पे इजहार होगा, क्या होगा, इसका क्या कायदा बताया था कि मीम के बाद मीम आती है तब इदगाम होता है, मीम के बाद बा होती है तो इख्फा होता है, और मीम के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ होता है तो क्या होता है, इजहार। इजहार का माना क्या है कि सिर्फ मीम के मखरज को जाहिर करते हुए आगे बढ़ जाना है, यानी मीम पर ठहरना नहीं है, बस में नाक में आवाज़ नहीं ले जानी, यानी एक अलिफ के मिकदार आवाज़ नहीं ले जानी, वगरना इसके अंदर गुन्ने आनी तो हमेशा पाया जाता है, गुन्ने आनी हमेशा पाया जाता है। नून और मीम की ये तो सिफत है, इसके अंदर गुन्ना आनी। अब गुन्ने की भी दो किस्म होती हैं, गुन्ना आनी है, गुन्ना ज़मानी। खैर आगे पहुंच जाएगी बात, अभी इतना ही पढ़ते हैं कि यहाँ पर मीम का इजहार होगा। क्या होगा, मीम का इजहार होगा, यानी ऐसे पढ़ेंगे अलैहिम तयरन, अलैहिम तयरन, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे अलैहिम तयरन, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। मीम पे रुकना नहीं है, मीम पे रुकना नहीं है, डायरेक्ट पढ़ेंगे अलैहिम तयरन। कैसे, अलैहिम, बोलो अलैहिम तयरन। अगर किसी ने ऐसे पढ़ दिया अलैहिम तयरन तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ये। चलो ये भी आपने समझ लिया। अब तयरन, तो तो भी जो है हरूफ मुस्तालिया में से है। कौन से हरूफ में से है, मुस्तालिया में से है। इसको भी अदा करते वक्त जो है ज़बान की जड़ को ऊपर उठाया जाता है। और एक सिफत और है, दूसरी एक सिफत जो है इसके अंदर इतबाक है। कौन सी है, इतबाक। इतबाक का माना आता है ज़बान से, वैसे तो आता है लुगत में देखेंगे तो माना का ढांपना, ढांप लेना, किसी चीज़ को ढांप लेना, ज़बान से ताल्लुक ढांप लेना। तो जब हम तो अदा करेंगे तो क्योंकि ता और तो का मखरज एक है, ता और तो का मखरज एक है कि नोक ज़बान सामने वाले दांतों की जड़ में लगा के ता दाल तो अदा करते हैं। तो ता में जो है इस्तिफाल ज़बान को सीधा रखा जाता है, और तो में जो है ज़बान की जड़ को बुलंद किया जाता है और ज़बान से तालु को ढांप लेते हैं, तब हमारा तो मुकम्मल पुर हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ोगे, तो। अब उसके बाद या है, यानी या लीन,
تو اس کو یہ آئلین کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. رو پر دو زبر ہیں تو دو زبر ہوں یا دو پیش تب بھی را پر پڑھی جاتی ہے. کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو یہاں بھی را کیسے پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی. تو کیسے پڑھیں گے؟ طیرن. کیسے پڑھیں گے؟ طیرن. طیرن. را کو پر کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ زبان کا اگلا حصہ اوپر اٹھا دیا جاتا ہے تالو کی طرف. کباتا وہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ طیرن. ٹھیک ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا. ٹھیک. اب آخری کلمہ ہے آپ کا ابابیل. کون سا؟ ابابیل. تو حمزہ پر زبر ہے, حمزہ کھینچ کے پڑھا جائے گا؟ نہیں کھینچ کے پڑھا جائے گا. با پر زبر بھی ہے اور زبر کے ساتھ الف بھی ہے. تو حروف مدہ میں سے ہے الف. کائے میں سے؟ حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں, لمبا کر کے پڑھتے ہیں, دراز کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ایک الف جو ہے الف, اس کو ایک ہی الف کھینچنا ہے. ابا. کیسا؟ ابا. ہاں. اور حمزہ کو نہیں کھینچیں گے. کسی نے کہہ دیا آبا تو غلط ہو جائے گا. بس میں کسی نے کہہ دیا ابابیل تب بھی غلط ہو جائے گا. با پر الف ہے تو اس کو ایک الف کھینچا ہی جائے گا. بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ جس حرف کے ساتھ الف ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور بالخصوص جب الف انا اوحینا الیک کما, تو یہ جو الف لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط طریقہ پڑھنے کا. یہ ایک حرف کی کمی کر دی آپ نے. بس سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہوتا ہے. تو یہاں پر جہاں پر بھی الف واو یا ہوگا تو یہ ایک حرف ہوتا ہے, ایسے کھینچ کے پڑھا جائے گا. ابا. کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ابا. اب با کے ساتھ یا آ رہی ہے اور یا سے پہلے زیر ہے, تو با کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں, کیوں الف واو یا یہ تینوں حروف مدہ میں سے ہے نا, تینوں کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. تو ابا بی. کیسے پڑھیں گے؟ ابا بی. اب لام پر زبر ہے تو پڑھیں گے ابا بیلا. ابا بیلا. مگر اگر ہم یہاں ٹھہرتے ہیں, یہ آیت ہے, تو زبر گر جائے گا یا ساکن ہو جائے گا, تو پڑھیں گے ابابیل. کیا پڑھیں گے؟ ابابیل. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا سبق ہوا آج کا. وقف قواعد بعد میں پڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ مخرج اور صفات کو سنیں اور اس کی ادائیگی کا درست طریقہ سیکھیں. تو پورا کیسے ہوگا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. آپ کے سمجھ میں آئی؟